Hi. So, welcome everyone in today's Tribe Meetup. I, Supriya Nehra, with my lovely partner Soumya and our lovely creative director Tara, welcome each and every one of you in today's meetup. So we are excited, and we were wanting to discuss about this like from a very long time, but now Universal decided that this is the time that we discuss about it. So there's a lot of saying, there's a lot of confusion about something which is called mind gym, which is our the thing which is there with us in us, and we have coined this. So this is completely we are going to patent it also in the future. So mind gym को लोग meditation के साथ confuse करते हैं. So today we are going to touch up on this topic, that what mind gym is, and our lovely participants are going to share also. We will ask them to share, but they have given their words on this, what mind gym is, and the people like Anita ji and quite Satvinder has not been in mind gym, but she has seen one or two of our sessions. Like yeah, she was there in the mind gym program, in the money Money program. manifesto. Yeah. So there she might have experienced something about the mind gym and all, but the entire program, what it is actually, so people get confused often by this. Even in the tribe also, we often hear people say, and we correct them actually, that this is not meditation. This is gymming of your mind. So what it is, how it works, how it is different from the meditation, this is what we are going to discuss today. So I welcome my beautiful partner Soumya to take the show on, to initiate the show and let us just tell about the scientific fact of what mind gym is doing and how it is different from meditation, the normal general meditation that we do, that is the focusing on the breath and all. So how mind gymming is different from the regular meditation that we do. Yes, Soumya. Thank you. Thank you, Dee. Thank you so much. Welcome, everyone. Super excited to have you all. Um, please, if you can, please be seated, put on your videos, exchange your energy with us so you can really take away something. So you're investing 1 hour of your time with us. Make sure you're going to get best out of it, yeah. Like time is money, right? So if you sit down, put on your video, we are 100% guaranteeing you'll take better knowledge from here than you are doing, because what you're doing right now maybe like you're doing something or the other, that's why you don't want to, means your attention is diverted. If your attention is diverted, no gain, वो भी 100% काम नहीं होगा और ये भी 100% काम नहीं होगा. So if you're not traveling, if you are not cooking or whatever, just please take a seat and we'll begin the show. Thank you so much for this. And to begin with, we want to share. So we have started this ritual since last Tribe Meetup, that we share the victories, like we share what's happening within Brain to Body to all the people. We want to celebrate each and every one who is present here, because उनके वजह से ब्रेन टू बॉडी एग्जिस्ट करता है. सो माइंड जिम हैज बिकम सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ नाउ, एंड दैट्स द प्रूफ दैट वी आर गोइंग टू शो राइट नाउ. दे वर सो काइंड इनफ टू शेयर देयर वर्ड्स. Let me bring that up. Is it visible? Yes, it is visible. Okay. Maybe can we just zoom it a little bit, if it is possible, so that the messages are visible to us. If it is not, then it's absolutely okay. No, I can't. It's WhatsApp images, no? So I Okay. can't. Okay. Okay. The first Pallavi is here. So Pallavi, thank you for saying it's a breakthrough for you in every area of your life, and it is for healing and abundance and gratitude. Thank you so much for. So we had asked them one word. What does mind gym means to them, right? So we had asked our tribes कि क्या mean होता है mind gym उनके लिए. So for Pallavi, it means she has, guys. You feel free to add on. आप unmute होके आप add on कर सकते हो. So she said it's a breakthrough for her in every area of life. सुमन बोलती है वो it brought about consistency and learning of acceptance and awareness. कितनी बड़ी बात है ये, है ना? बहुत जल्दी easily consistency डालना या acceptance आना, awareness आना बहुत ही hard है. Like we know that we are trying to do something consistently, we are trying to be accept ourselves as we are or accept someone as they are, नहीं आता है उतना जल्दी. But she's saying वो mind gym के थ्रू कर सकती हैं ये. Mind gym has brought awareness. मोनिशा जी, माइंड जिम हैज ब्रॉट अवेयरनेस, इमोशनल स्ट्रेंथ एंड इनर पीस इनटू माय लाइफ. कितनी बड़ी बात है ये सभी चीजें जो लगता है ना कि ये सिर्फ साधु संत को मिलता है, जो तपस्या कर रहे हैं, जो पेनेंस कर रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के गए हैं, सोसाइटी को छोड़ छाड़ के गए हैं, उनको मिलता है. No, it's not true. See, life proof. These are people who are very much on call here. If anybody has doubt, you can, ask them to unmute and talk also. It's their verdict that they are saying. Um, For Rachna, it's a transformational and knowing herself. For Raman, it is as my self space, which has helped me healing emotionally, brought awareness, peace, and abundant mindset. बहुत टफ होता है abundant mindset लाना, क्योंकि हमारा ग्रोथ ही लैक की एनवायरनमेंट में हुआ है ना.
बचपन से ही ये मत करो, वो मत करो, वो मत खा, ये कमी है, वो कमी है, चादर जितना है उतना ही पाँव फैलाओ, ये सब कॉन्सेप्ट्स ना हमारे दिमाग में है। सो उस जगह से आप बोल रहे हो मैं करोड़पति बनूंगी, मेरे पास गाड़ी होगा, मेरे पास बंगलो होगा, मैं वर्ल्ड ट्रिप करूंगी, ये नहीं होगा पॉसिबल। You need to have that kind of mindset also. Mindset is what is going to get you those things. It's not the actual money or the actual things that are going to get you that. This mindset कि भाई मैं अमीर हूं, मेरे को अमीर वाली फीलिंग है, तभी जाके आप अमीर वाला हरकतें जो है वो करोगे। मनीषा जी ने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ माइंड जिम शी इज नोइंग हर सेल्फ बेटर, आई हैव बिकम अवेयर ऑफ माई थॉट्स एंड आई एम गोइंग इनसाइड. She means she's going inward, she's trying to know herself better and better, and that's what we have been seeing in her journey as well. Thank you guys, thank you Manisha ji, thank you Raman ji, thank you Rachna. बीना जी बोलते हैं माइंड जिम उनका ज्वाइन हुए हाल ही में 10 ही दिन हुआ है, वो बोल रहे इन 10 दिनों में हेल्प मी टू मीट माई इनर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस डीप कामनेस. एंड ये लोग जो हम बात कर रहे हैं ये बहुत सालों से दे आर वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, है ना, बहुत सालों से वर्क कर रहे हैं, वो ग्रेटिट्यूड की जर्नी में है, वो मेडिटेशन करते हैं, वो योगा करते हैं, वो प्राणायाम सब कुछ करते हैं वो लोग। पर जो जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है माइंड जी में वो अलग है. सो शी इज अ 60+ ईयर ओल्ड लेडी हु इज सेइंग आई मेट माई इनर सेल्फ एंड एक्सपीरियंस डीप कामनेस. बड़ी बात है ये, है ना. Savita is saying clarity, calmness, strength, fit mind leads to perfect life. तो शी केम टू अस विथ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कि बहुत ही साइंटिफिक पर्सन है, बिलीव ही नहीं करती थी ये सब चीज़ों में, बहुत क्वेश्चंस करती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आई बिलीव दैट 1 लाख रुपीज आ गए मेरे अकाउंट में, कैसे आ जाते हैं. एंड शी इज अ वेरी पर्सन हु इज सेइंग अभी मेरे पास ऐसे सोचती हूँ आ जाता है. Why? Because she's the most consistent person we have seen on Mind Gym. She's there every day on the call at 5 a.m. That is what makes the change. कुछ भी चीज आप कंसिस्टेंसी से करोगे ना, आप उसमें परफेक्शन आ ही जाएगा. थैंक यू बीना जी एंड सविता जी. Manish has been with us. So he's of course said about B2B, and doing Mind Gym is a life-changing experience. It helped me be more self-aware, shift in mindset practices, gave me immense clarity in my thoughts, gave me mental resilience and strength. I started living in present. तो ये मनीष जी हैं जिनको हमको बोलना पड़ा, ये दुबई गए थे and he was keeping alarm at 3 o'clock to wake up and do the mind gym because हमारा 5 o'clock इस दुबई का 3 o'clock. तो हमको उनको बोलना पड़ा कि भाई सुनो आप ठीक से सो जाओ, आप सुबह अपने दुबई के 5 a.m. उठ के आप जो रिकॉर्डिंग मिल रहा है वो कर लेना. We had to insist him to take a break from the mind gym. Break in the sense do it at his 5 a.m. and not wake up at 3 a.m. You know, because his sleep was getting incomplete. So this is उसमें कुछ है, वो बात है. एंड व्हाट इज दैट बात, वो हम अभी आगे जाके हम समझेंगे. वो व्हाट इज दैट एसेंस दैट इज देयर इन माइंड जिम विच विच इज मे नॉट बी फाउंड एल्सवेयर. वो वाली बात हम बात करेंगे. एनी जी बोलते हैं रीजन एंड अ पॉजिटिव कंपल्शन टू गेट अप. सो दिस लेडी रियली वांटेड टू. और बहुत सारे लोगों को है ना सुबह के 5 a.m. उठने का बहुत गोल था, है ना, बहुत सारे लोगों का 5 a.m. का गोल था. And they are able to achieve it through Mind Gym. And Annie G is one of them. A very elderly person with us, very young at heart, very young at mind, but she got a reason with this. So beautiful. Thank you, Manish. Thank you, Annie. Ashwini. For me, the Mind Gym, she calls it as meditation for her, which we will address today, is a deep sense of awareness, a state of inner silence that calms my mind and connects me to the universe. In the initial day, she has followed closely everything that's been guided, but now naturally, see, but over time, with consistent practice, I now naturally go much deeper. I feel deeply grounded, spiritually connected, and at one with the universe. It's truly an amazing experience, something beyond words, yet profoundly fulfilling. यही गोल है, यही गोल है जहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट यू मे नीड माइंड जिम. यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विथ योरसेल्फ सो मच इजियर कि रोजमर्रा जिंदगी में जब आप कुछ भी कर रहे हो आप ऑटोमेटिकली डीप इन स्टेट पे ऑटोमेटिकली जाओगे व्हेन यू स्टार्ट डूइंग माइंड जिम, है ना. सो थैंक यू अश्विनी फॉर दैट पावरफुल फीडबैक. भारती शर्मा अभी हैं यहाँ पे कॉल पे. The sense of being empowered to take control of my thoughts, emotion, and life has been truly transformative. It's a feeling of freedom, confidence, and inner strength that I've gained through the Mind Gym journey. Absolutely awesome. Thank you so much, Bharti ji, for sharing this, for coining the word empowerment along with Mind Gym. We are so happy that you could feel empowered and you are feeling transformed. That is so exceptional. Thank you so much. तो ये है कि दीदी यू हैव टू ऐड एनीथिंग. मैंने चैट में कुछ नहीं देखा. Yeah. So, see, the thing that they are doing here is not just calmness. The thing they are doing is mental rewiring हो रही है उनको. Whenever you are talking about this thing, जैसे सौम्या भी बता रही थी कि yes, I have achieved this thing. आप affirmation कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. But you need to clear that space in your mind and you need to make your mind receptive.
When your mind is receptive, then only you will be able to implant new things in your mind. So what we do here in the mind gym is we create muscles. आपके जो ब्रेन के मसल्स बनते हैं, नया पैटर्न्स बनते हैं, वो नए पैटर्न्स जब बनेंगे, वो पैटर्न्स क्या होता है, as you all know that energy can neither be created nor be destroyed. You have to transform that. ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होता कि आप एफर्मेशन के विदाउट एनी फीलिंग आप रट्टे लगाए जा रहे हो. यू नीड टू कनेक्ट विद योर सेल्फ. यू नीड टू मेक पीस विद योर पास्ट. वट एवर इज हैपन विद योर इन योर पास्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. एंड वेन यू वर्क आउट ऑन योर सेल्फ, वेन यू डू सर्टेन टेक्निक्स, वेन यू सिट विद योर सेल्फ. सभी के सभी, अश्विनी ने क्या कहा, आई एम नाउ एबल टू सिट विद माई सेल्फ. एंड सो हम लोग उनको ये नहीं बोलते हैं कि तुम लोग जो है ना इस तरह से करो. यू डू नॉट, वी नेवर से, वी से दैट यू हैव टू फील द बैड इमोशन ऑल्सो टू हील इट. And we make them do in the mind gym session. Mind gym session is truly divine. Only the people who are attending it can tell you that me, Soumya, whoever's taken mind gym, now we do not prepare at all about anything. कभी प्रिपेयर करके आते भी है ना, तो सबकी एनर्जीज, हम अभी सौम्या ने आपको बोला ना कि प्लीज अपने कैमरास ओपन कर लीजिए, सो दैट द एनर्जी एक्सचेंज इज वेरी स्मूथ. सो व्हेन वी कम इन द माइंड जिम, व्हेन वी सिट ऑन द चेयर ऑफ गाइडिंग यू गाइज, सो सम डिवाइन पावर कम्स एंड इट कैप्चर्स योर माइंड स्टेटमेंट, एंड देन वी वर्क ऑन दैट. ऑटोमेटिकली इट हैपेंस, automatically. So this is all the divine calling which is coming here, and which is making us say, making us do all the things. And you will come to know कि आप कैसे, आप जैसे कि एफर्मेशंस करते हो या अपने आप बैठते हो, सिटिंग विद योरसेल्फ, मेडिटेशन करने की. मेडिटेशन क्या करता है, आपको कामनेस लाता है. कामनेस आपको, जैसे पहले जमाने में क्या था, स्पिरिचुअल गुरुज हैं, लीडर्स हैं, वानप्रस्थ आश्रम में वो हिमालयाज में चले जाते थे, वहां जाके तपस्या करते थे, अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे. तो मैं कहती हूँ कि हिमालयाज में जाकर करना इज इजियर दैन टू सिट इन द गृहस्थ आश्रम और वहां पर करना. क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती है. आप यहां पर हो, आपको तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस है, आपको करियर में कुछ हो जाएगा, वहां आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करना है ना. तो अगर हम ये बोल दे कि हम लोग काम हो गए, काम हो गए, तो नहीं. आपको अपनी वायरिंग को बदलना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट में क्लैरिटी करनी पड़ेगी. देन यू विल बी एबल टू हील इट. यू हैव टू गो बैक टू द टाइम जहां पर वो चीज, कुछ घटना आपके साथ घटी थी, वहां पर जाओगे, वहां पर ठोका पीटी करके आओगे, ठोका पीटी करके उस जगह को अनवायर करके वापस से वहां कुछ इंस्टॉलेशन करोगे, तब यू कम बैक. दिस इज व्हाट वी डू. सो दिस इज नॉट लाइक योर रेगुलर मेडिटेशन दैट यू डू ऑन योर ओन. अदरवाइज हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत सालों से विपश्यना और ना जाने कितने तरह के मेडिटेशंस करते हैं. दे देमसेल्फ से दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन व्हाट वी हैव डन. So this is their thing that they are experiencing here, and they're able to, in spite of having spent so much of their time in the meditation process, in the affirmations and all, still they are here to experience that mind rewiring and mind retraining thing. So this is what Mind Gym is doing to us. So this is so wonderful. And obviously, we all give one free ticket to Mind Gym. You can all experience that. The people who are new to us, they can all do that. So that way, the people who are listening to us in the YouTube and also, we also welcome you कि आप एक बार आएं और आप then only you will be able to, चखने से पहले स्वाद का पता नहीं चलता है. जैसे you have to fall in love to feel what love is. You have to go dive deep into that negativity also टू ब्रिंग पॉजिटिविटी फ्रॉम देयर. यू हैव टू, कीचड़ है ना, कीचड़ के अंदर घुसकर ही आप कमल को निकाल सकते हो. तो रोज हम अपने माइंड जिम्स को ऐसे डिजाइन करते हैं कि आपको कीचड़ में ले जाकर वहां से कमल को उठाकर आप अपने आप लाकर अपने घर में उसको सजाकर रखते हो. So like that, we make you do that in the mind gym sessions. So yeah, Soumya has got something new for us to tell us, something she will be having some revealing things for the mind gym. So let us go to Soumya and listen to her. Awesome. Thank you, Dee. Thank you for that preview. And now, we are going to share the factual kind of things so that you guys can really see it in front of your eyes. Okay. So let me once again share my screen. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. Awesome. Awesome. First and the foremost thing, we want to clearly, boldly declare it, claim it, accept it, enhance it, embrace it. Everything is the first line. Mind Gym is not meditation. Yes, meditation is a part of Mind Gym. Maybe there are times when we do meditate, but every time it's not meditation, it's something else. Even we, like Ashwini has said, it is beyond words. It's deeply profound. We still don't know what it is. People have called it meditation. A lot of people think it's meditation. It feels like meditation, but it's definitely not meditation. It is something beyond. बिकॉज इसकी जर्नी, इसकी शुरुआत बहुत ही डाउट की जगह से स्टार्ट हुई थी. हम पहले की मॉडल में जब ब्रेन टू बॉडी फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ वन ऑन वन
sessions where we used to talk and we used to do this kind of practices. हर किसी का different होता था, हर किसी का need उस time पे क्या होता था उसके basis पे होता था. But over the period of time we realized that it's not working out. People are not doing it over the period of time. देखो जब आज ही मैं किसी को समझा रही थी कि एक बूंद कंटिन्यूअसली अगर पत्थर पे पड़ता है, एक एक बूंद होके, है ना, one drop at a time, it has so much potential that it can make a dent in that rock. A simple humble drop of water, if it can make, by repeatedly doing that same action, it can make a dent in the rock which is rigid of all the things in this nature. To just imagine what one can do when they do consistently something. So that's where the birth of Mind Gym happened. And we, although it started like, we also thought it's a meditation, but we did not want to use meditation because it was not feeling like meditation. So we really did ask our subconscious mind, and out of nowhere, one fine day, this word Mind Gym came into existence. And we are deeply grateful, thankful to everybody who embraced these two words, that is Mind Gym. And yes, we will patent it, and we have big dreams for this word, we have big dreams for this thing, and it will happen very soon. So when it started at 5 a.m., कोई तब के लोग नहीं करना चाहते थे 5 a.m. I remember making these calls to people who have come to Brain to Body, and we are explaining to them ki you have to do this every morning 5 a.m. and people were like, 5 a.m. it's too early. वो जगह से start हुआ है Mind Gym. People were not embracive, people were not accepting. You know what? We did not change people. We did not change people at all. We changed ourselves. We changed our belief. It was our belief. We thought like log 5 baje nahi utte. Now we have good 35 plus, at least consistently 16 people to vouch for it, to say 5 a.m. में जगने वाले बहुत सारे लोग हैं. There have been times where my gym was completely blank. There was no one there, but still it sustained. Why it sustained? Because Bhagwan, the universe, doesn't need Bhakt to be universe. है ना? मंदिर अपने आप चलते हैं. मंदिर थोड़ी ना भक्त लोग आते हैं इसीलिए चलता है. भगवान बैठे रहते हैं, जब जब जिनको चाहिए वो तब तब आ जाते हैं. तो माइंड जिम इज लाइक दैट. इट्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप. इट्स अ वेयर यू मीट yourself and the divine superpower. So that's why we say it's mind gym. We are gymming. It's more scientific than that. We will explain what scientific techniques do we use and how it makes an effect in your life. अभी जो मैंने बात किया वो स्पिरिचुअलिटी के एंगल से था, वो आपको आगे जाके प्रिया और भी ज्यादा एक्सप्लेन करेंगी, बट आई विल हैंडल द साइंस पार्ट ऑफ इट. जब आप मेडिटेट करते हो तो लोगों का बड़ा विश्वास है कि आप काम हो जाते हो. ठीक है, अगर मैं आप लोगों को पूछूंगी कि काम क्या है, आप क्या बताओगे? जस्ट पुट इट इन द चैट, व्हाट डज कामनेस मीन टू यू. ठीक है, जस्ट पुट इट, जस्ट व्हाट इज काम, व्हाट डज काम मीन टू यू. काम का मीनिंग क्या है? ड्यूटी. ड्यूटी? डिड यू से ड्यूटी और ब्यूटी? आई सॉरी. ड्यूटी ड्यूटी. ड्यूटी. उनको अपना हिंदी वाला काम समझ में आया है. काम नहीं, काम नहीं, काम. ये ना काम. संजू जी भाई साहब. शांति. शांति. हाँ, शांति का मतलब क्या है? what is that experience? What is that feeling for you? Rachna says internal happiness. Good. Peaceful state of mind when you are in present and calm and peace. What is calm? You used word again, calm. What is calm? Peacefulness. What is peace? When you surrender everything and you just be in the present moment. Okay, cool. Thank you. I have learned enough. Well done. So I know it. Okay. But yes, these words somewhere आप लोगों को, thank you guys for sharing whatever you shared. But किसी किसी को लग रहा है कि जो आप फील करते हो ना, वो calmness और peace, आप डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे. Like these words are just trying to Experiential. communicate, but जो आपको काम बोल रहे हो वो एक्चुअल कभी आप किसी को समझा नहीं सकोगे, बिकॉज योर कामनेस इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. लाइक आपका काम होगा बीच के पास बैठ के आप बैठे हो, दैट इज मेट बी योर कामनेस. द फीलिंग यू गेट व्हेन यू आर ऑन द बीच, दैट इज योर कामनेस. किसी को अपने बच्चों के साथ खेलते वक्त काम फील होता होगा, किसी को अपना जॉब पूरा करने पे काम फील होता होगा. सो कामनेस इज अ डिफरेंट स्टेट. लाइक वो सब किसी को ना डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग में आता है. So that's why calm is not transformative. Calmness is just a state of being. ठीक है, बट कहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता है? जब आपका माइंड ट्रेन होता है. ट्रेनिंग द माइंड वेयर साइंस मीट्स स्पिरिचुअलिटी. लेट्स गो. ठीक है, ऑनेस्ट क्वेश्चन आप सभी को है.
आप यहाँ आने से पहले बहुत सो लोगों ने ट्राई भी किया होगा ना, आपने मेडिटेशन ट्राई किया होगा, आपने अफर्मेशन किया होगा, आपने अवेयरनेस, अवेयर होने का, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का, जो आप सभी लोग बोल रहे हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट इज नथिंग बट बीइंग अवेयर। आप लोगों ने ट्राई किया है ना, सभी ट्राई किया होगा ना, बिना मदद के, बिना कुछ पढ़े, आपने कुछ बुक्स बुक्स पढ़ के किया होगा। तो आप ये वाला चीज आंसर करो। सो इफ यू हैव ऑलरेडी डन दीज थिंग्स, आपने मेडिटेशन किया, आपने अफर्मेशन किया, आपने अवेयरनेस की, यू हैव ट्राई टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, डीप ब्रीदिंग किया, वो किया, ये किया, देन टेल अस व्हाई डू ओल्ड हैबिट्स रिटर्न, व्हाई क्रेविंग्स परसिस्ट। आपके इमोशनल ट्रिगर्स क्यों होते हैं? वही बंदा दिख गया और आप फिर से चिड़चिड़ होने लग गए, कोई उधर का चीज इधर कर दिया, आपको गुस्सा आ रहा है, तो व्हाई डज दिस हैपन? रिलेशनशिप्स में आप फंसे हुए क्यों क्यों व्हाई डू हैव दोस रिलेशनशिप वेयर यू आर नॉट हैप्पी एंड कंटेंटेड विद इट? अगर आपने ये सब कुछ कर लिया है ना, आपके पास सभी चीज के लिए अफर्मेशन होगा, आपको आपको प्रेजेंट मोमेंट में आता होगा, आपने मेडिटेट भी किया होगा, बट ये चीजें क्यों आती हैं बार बार? आते हैं ना, आते हैं ना। मैं फिर से गुस्सा हो गई, मेरे को फिर से ये हो गया, मैं फिर से टी पीने लग गई, मैं तो 3 महीने टी छोड़ दिया था, फिर से टी पीने लग गई, मैं फिर से चिप्स वगैरह खाने लगी, मेरे को बाहर का खाना देखते ही अभी भूख लग रहा है, मेरे को उसको देखने से ना चिड़चिड़ आती है ना? क्यों होता है ये सब कुछ? व्हाई? बिकॉज काम इज नॉट कंडीशनिंग, बिकॉज काम इज नॉट कंडीशनिंग ना। जब आपको गुस्सा आ रहा है, काम डाउन बोले से आप काम डाउन हो जाते हो क्या? हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली काम डाउन व्हेन यू हैव बीन एंग्री एंड समबडी सेज काम डाउन? मैं तो और फ्लेयर अप हो जाती थी पहले तो। हु फील्स, मेरे को और गुस्सा चढ़ जाता था, काम कैसे होते हैं Unless, unless someone sings that song, baby, calm down, calm down. यार? तब वो भी गुस्सा आता है दीदी, क्योंकि यू आर सो, you are not in that emotional mind state to even comprehend what is calm at that time, है ना? योर Right. बॉडी में इतने सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए हैं एंगर के, काम के मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। काम डाउन बोलने से इट्स लाइक केरोसिन डाल रहे हो आग के अंदर, है ना? तो वही बोलते हैं ना, देयर वर सो मेनी रील्स कि काम डाउन मत बोलो, कुछ और बोलो, काम डाउन मत बोलो, स्पेशली फॉर वुमेन वी हैड बिकम अ मीम मटेरियल, बट दैट्स ट्रू, बिकॉज कामनेस इज नॉट, बिकॉज आप मेडिटेशन कर रहे थे वहां पे तो काम थे ना आप, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो? बिकॉज Hmm. माइंड में ट्रेनिंग नहीं हुआ है, इट्स नॉट सीप्ड इन टू योर माइंड, इट्स नॉट पार्ट ऑफ यू, दैट्स वाई इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। अब हम मिसअंडरस्टैंडिंग के पास आते हैं। मेडिटेशन में क्या लोग सोचते हैं, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है जो हम आज एक्चुअली एड्रेस करना चाहते हैं, कि इट स्टॉप्स थॉट्स। You cannot stop your thoughts, people, just like you cannot stop your heartbeat, you cannot stop your lungs pump in and out, you cannot stop your kidneys from filtering, you cannot stop thoughts। ठीक है? तो जो भी लोग समझते हैं ना कि मेडिटेशन में मेरा थॉट्स बंद हो जाता है इसलिए मेरे को मेडिटेशन करना है, दिस इज अ रॉन्ग, रॉन्ग नहीं, इट्स अ मिसलीडिंग वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। आप मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, तो प्लीज इस इंटेंशन के साथ तो मत कीजिए कि ये स्टॉप थॉट्स होता है, बिकॉज द मिनट यू कीप दिस इंटेंशन, इट्स गॉन आउट ऑफ वाटर, बिकॉज वो सच ही नहीं है। ठीक है? मेक्स यू पीसफुल। वही तो, इफ यू, देखो, आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए यार। आप पीसफुल हो ना, सी, आप पीसफुल हो गए तो आपको हर जगह पीसफुल होना चाहिए ना, तो गुस्सा क्यों आ रहा है? आप इरिटेशन क्यों जा रहे हो? आप एक्साइटेड क्यों हो रहे हो? आप हैप्पी क्यों हो रहे हो? आप उछल कूद क्यों रहे हो? आपको पीसफुल ही रहना है हमेशा, ये होता है आपसे? नहीं। फिक्सेस प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली। बहुत सारे लोग ये कुछ हो रहा है, बैठ जाते हैं थिंकिंग दैट ओके मैं काम हो जाऊंगी तो मेरे को आंसर मिल जाएंगे। यस इट विल, कामनेस एक्चुअली गेट्स यू आंसर, बट जब तक आपके अंदरूनी जो चीजें, आप प्रिया बोल रहे थे आपको सभी को कि unless you address what's going on you can't find calm, और उसके लिए मसल्स लगते हैं, उसके लिए मसल्स बनाने पड़ते हैं। तो what it actually does, meditation brings temporary calm। जब आप कर रहे हो आप बहुत शांत हो, जब आप नहीं कर रहे हो आप शांत नहीं हो। क्रिएट्स अवेयरनेस, डेफिनेटली इट क्रिएट्स अवेयरनेस। आप प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप ब्रेथ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, आपकी बॉडी के जो भी हीलिंग हो, लाइक यू फील दैट ग्राउंडिंग एंड कामिंग। अगर हेडेक वेडेक है तो आपको फील होता है, आप जब मेडिटेशन करोगे सच में, आप चुपचाप बैठ के आप ध्यान करोगे तो डेफिनेटली आपको अवेयरनेस होगा, आपको यूनिवर्स के बारे में ज्यादा पता चलेगा। एंड हेल्प्स यू ऑब्जर्व योर पैटर्न्स, डेफिनेटली, हाँ मैंने ये सोचा था, मैंने ये किया था, मैं ये सी करती हूँ, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, ये आप डेफिनेटली ऑब्जर्व करते हो। बट उस ऑब्जर्वेशन की क्या, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन? क्या आप में कुछ बदलाव आया है? हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनको पता है कि उनको वो चीज से ना ये होती है,
if we go and मुझको पता है मेरे को इस चीज से गुस्सा आता है, फिर भी they are unable to overcome it, unable to be calm even in that state, right? Unable to, ऊपर नीचे हो रहे हैं, दुख की बात, ये ट्रेजेडी की बात आ गई तो रोने लग जाते हैं, कुछ काम नहीं बन पड़ा तो ये हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आपको पता है ना कि काम नहीं होने से, आपका ये पैटर्न है, आपका काम नहीं होने से आप अपसेट हो जाते हो, उसके बाद ओवर ईटिंग करते हो, ये आपने पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया है, और इसके साथ साथ आप मेडिटेट कर रहे हो। आपको तो ये ओवरकम कर लेना चाहिए था ना अब तक, पर नहीं हुआ है ना। बट ऑब्जर्वेशन अलोन डज नॉट रिवायर योर बिहेवियर। बहुत सारे लोग अवेयर हैं, बहुत सारे उनको उनका ऑब्जर्वेशन पता है, उनको पता है कि उनको कहाँ, वेयर आर देयर पिटफॉल्स, वेयर दे फॉल डाउन, वेयर दे गेट अप, वेयर दे गेट एक्साइटेड, व्हाट मेक्स देम हैप्पी, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट आर देयर गोल्स, व्हाट आर देयर, सब कुछ पता है। बट just doing meditation, were you able to change any of these? No. Why? Because the mind is same, it is your identity is same as before. Okay, now understand. Meditation suits the mind, mind gym trains it. जैसे हमने बोला है, meditation is definitely a part of mind gym, but mind gym is not just meditation. ठीक है? One is passive. Yes, we do some passive. We just ask you, starting में तो हम वही बोलते हैं calm down होने के लिए, observe your breath. पैसिव लगती है, पैसिवनेस लगती है, तभी जाके आप एक्टिव करवा सकते हो। ठीक है? वन इज पैसिव, वन इज अ स्टेट, वन इज एक्टिव एंड वन इज अ स्किल। माइंड जिम ट्रेन्स यू टू बी एक्टिव एंड हैव अ स्किल। व्हेन वो जो चीजें होने लगती है ना, आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके उनको काउंटर एक्ट कर सको। वो अवेयरनेस, वो टूल्स देती है माइंड जिम में। ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस थ्रू ट्रेनिंग, नॉट इंटेंशन। इंटेंशन चाहिए, इंटेंशन से आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो, बट सिर्फ इंटेंशन रखने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत लोग कर लेते हैं ना 31 दिसंबर को, इस साल मैं वजन घटाऊंगी। इंटेंशन तो रख लिया भाई, क्या कर रहे हो आगे? इंटेंशन तो है, कर क्या रहे हो? वही पैटर्न्स है। एक दिन जाओगे फिर, और यार नहीं यार, कल ऑफिस में पार्टी था, लेट सो गई, मैं नहीं उठ पाऊंगी, हो गया। बिकॉज वाई? योर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड, योर माइंड इज नॉट ट्रेन्ड टू वर्क ऑन द इंटेंशन, है ना? दैट्स वेयर माइंड जिम कम्स इनटू पिक्चर। व्हाट इज माइंड जिम नाउ? स्ट्रक्चर्ड मेंटल ट्रेनिंग। स्ट्रक्चर्ड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर दिन सेम नहीं है। It is absolutely different, and it actually caters to your need. How it caters, we don't know, don't ask us. It actually caters. एक भी दिन ऐसा नहीं है कि किसी एक को भी बेनिफिट नहीं हुआ है। Every day everybody is getting benefited. People who do mind gym, can you please validate the statement that you guys get benefited on everyday basis? Hardly there have been any days where you felt like मुझको कुछ feel नहीं हुआ या connect नहीं हुआ, and or you have dozed off or anything, but you are feeling the difference of the mind gym. Can you please validate this for us, for the others who are new to us? Next, nervous system conditioning. आपको ये सीखना है कि आप, किसी ने बहुत ही खूब तरीके से समझाया है ये चीज की, आपका जो दुनिया है ना, whatever you see, whatever you touch, whatever you feel, whatever you sense, whatever is there outside you, right, is simply your interaction with your nervous system. अगर आपका नर्वस सिस्टम तावला है, चिड़चिड़ है, तो आपका देखो, आपका पूरा एनवायरनमेंट चिड़चिड़ाई दिखेगा। वही देर हैव बीन टाइम्स आप बहुत ही क्राउडेड जगह पे हो, बट आप कहीं ना कहीं शांत हो, तो सब कुछ शांति से ही हो रहा है। That is why you can see there is so much variety in people. Now, one for a same situation, everybody will react very differently. Because why? Because everybody's nervous system is entirely different. ठीक है? आपको ये सीखना है कि आपका नर्वस सिस्टम, आपका जो मैसेजेस जाते हैं ना आपके ब्रेन से आपके पूरे बॉडी को, ये कैसा वर्क करता है। आपको माइंड और बॉडी को सेपरेट करना है, उसको समझना है, और ये होता है माइंड जिम में। यू एक्चुअली स्टेप आउट ऑफ योर बॉडी, यू एक्चुअली सी योर माइंड, यू एक्चुअली गो बैक इन द पास्ट, यू एक्चुअली फील इट, यू एक्चुअली फील इट, एंड दैट इज नर्वस। एंड हम इतने, we will be in such a safe and protected environment at 5 a.m. We can't even explain it. You are digging into your most toughest and most traumatic and most, वो बोलते हैं ना कि दर्द भरा wound है, उसको भी आप छू के आते हो, and you are not tarnished. You are not remembering it throughout the day. You are feeling like, oh, I did this and I felt different. Because इतना प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है उस सुबह में 5 a.m. में। सबकॉन्शियस हैबिट रिवायरिंग। आपके हैबिट्स, हम आगे पढ़ेंगे कि आपके हैबिट्स आपके कॉन्शियस माइंड से थ्रू आता है। आप
आपकी सॉरी आपके हैबिट सब सबकॉन्शियस माइंड में है और आपका विल पावर कॉन्शियस माइंड से है। तो यू आर टैकलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड विथ योर कॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना है? 95%। और आपका कॉन्शियस माइंड कितना है? 5%। कौन जीतेगा? 95% जीतेगा ना। और वो सबकॉन्शियस हैबिट रिवायरिंग के लिए आपको रिपीटेशन लगेंगे। आपको आपका ब्रेन स्टेट को वहां तक लेके जाना पड़ेगा जहां पे आप उसको चेंज कर सको, उसको बिलीव करवा सको। दैट इज माइंड जिम। इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस, कितने सारे लोग, वी कैन एक्चुअली नाउ कॉल सो मेनी पीपल राइट हियर एंड आस्क देम दिस टू वैलिडेट दिस वन पर्टिकुलर लाइन, इमोशनल रेगुलेशन प्रैक्टिस। खुद आइडेंटिफाई करते हैं, बोलते हैं कि मैं ऐसे फील कर रही हूँ, आई एम ओके, ओके बोल के दे मेक पीस विद इट। दैट इज पीस। ये नहीं है कि आपको बुरा लग रहा है कि आप भागो अच्छे की तरफ। ओ मुझको बुरा लग रहा है, नो नो नो, आई शुड फील गुड, आई शुड फील गुड, आई शुड फील गुड। नो, you embrace what you're feeling. That is peace. Peace of mind doesn't come by being oh good 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 wala feeling mein na. Peace of mind comes when you accept whatever is happening to you. आपको खून करने का भी फीलिंग आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करो पहले, तब जाके आप खून न करने वाली फीलिंग को जनरेट कर सकोगे। ठीक है? That they have been able to do it through mind gym because mind gym makes you so aware. आपकी रोम रोम को वो पहचान में लाता है। It makes you see your soul. That is soul, your mind and your body. These are three things, or three things is covered in the mind gym. Gym trains muscle, mind gym trains responses. आप जिम में जाके, लोग सोचते हैं ना मैं जिम जाके मसल बना रहा हूँ। एक्चुअली आप जिम जाके मसल नहीं बना रहे। जब आपने ये डिसाइड किया ना मैं जिम जा रहा हूँ और आपने वो शूज पहने, सॉक्स पहने, एक्टिव वेयर पहन के आप गए, दैट इज व्हेन द मसल्स वे मेड। और जब कब मसल्स बनते हैं पता है? जब आप वो रैप कर रहे हो, 20 रैप कर रहे हो, आपके ट्रेनर ने बोला 21 करना है, आपको 20 पे आप थक चुके हो, आपको नहीं करना है 21, बट तब भी जाके आप वो करके आप इसे उठा के इसे ऊपर करते ना, दैट मेक्स योर मसल्स। बिकॉज दैट इज वेन योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अच्छा इसको पेन भी हो रहा है फिर भी मेरे को ये करना है, मीन्स दैट पर्सन वांट्स दैट, ओके लेट मी गिव इट दैट टू हिम और हर। That's how gym works. And that's exactly how mind gym works. It works on your responses. हम आपको ये mind gym में आप सीखते हो कि आप क्या हो और आपके reactions क्या आते हैं और आपका responses कैसे होना चाहिए। Isn't that beautiful? साइंस जाते हैं, बहुत ही जल्दी से मैं कवर कर लूंगी बिकॉज यहाँ पे जो कोई भी है दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस साइंस पार्ट। सो हमको पता है कि अल्फा स्टेट है, थीटा स्टेट है, ये दो स्टेट्स ऑफ माइंड है जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड इज योर ड्रीमिंग, जब आप ऑलमोस्ट सुबह के टाइम उठने से पहले आपको ख्वाब आते हैं ना, जो ड्रीम्स आते हैं, दैट इज अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है? जब आप घोड़े बेच के सो रहे हो 3-4 बजे, 2-3-4 बजे जब आप सोए हो, दैट इज थीटा स्टेट ऑफ माइंड। सिंपल भाषा में आपको समझाना है तो। और एक एग्जाम्पल है थीटा स्टेट ऑफ माइंड इज जब आप छोटे बच्चे थे, आपको शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड तक कुछ भी याद नहीं है, दैट इज थीटा स्टेट ऑफ माइंड। फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7 स्टैंडर्ड तक कुछ 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 याद है, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है? सो जब आप ये दोनों स्टेट ऑफ माइंड में रहोगे तब आपके सारे जो है हैबिट्स आर फॉर्म्ड, बिलीव्स आर इंस्टॉल्ड, इमोशनल मेमोरीज आर रिटन। व्हाट इज एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ माइंड जिम? लेट अस हाईलाइट दैट। ये आप भी कर सकते हो ना, आप अल्फा स्टेट में जा सकते हो, आप थीटा स्टेट में जा सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, आई एम फिट, आप बोल सकते हो, बट आपसे वो बिलीव नहीं किया जा सकता है बिकॉज योर कॉन्शियस माइंड ऑलवेज, यू नो समवेयर डीप विद इन यू दैट दिस इज नॉट यू, दिस इज नॉट यू, यू आर नॉट फिट, है ना? बट when you are guided by something, you're guided by someone, or you're guided by higher power, what happens? It installs a belief in you, and please, you are what you believe. आप जो भी आप बिलीव करोगे ना अपने बारे में, आप वही बनोगे। अगर आप ये बिलीव करोगे कि मैं मेरे को चाय छोड़ ही नहीं सकती हूँ, आप मरते दम तक चाय नहीं छोड़ सकते हो, नॉट पॉसिबल। कोई कोई कुछ भी दे दे आपको, कोई दवाई भी दे दे, कुछ भी दे दे ना, आप जैसी दवाई बंद करोगे आप फिर से चाय पे जाओगे। बिकॉज यू आर वॉट यू बिलीव, एंड बिलीव को कहाँ पे डालना पड़ता है? यहाँ पे, अल्फा स्टेट और थीटा स्टेट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं सो गई थी, मैं वहां बोलते बहुत ही अच्छा होगा आप सो गए, बिकॉज डायरेक्टली आपकी सबकॉन्शियस माइंड में गया, आपका कॉन्शियस माइंड इंटरफियर ही नहीं किया है इसके अंदर। अल्फा स्टेट में थोड़ा तो कॉन्शियस चलता रहता है ना, तो एटलीस्ट थीटा में वो भी नहीं है, आपकी डायरेक्ट सबकॉन्शियस में रिवायरिंग हो गई। हमने बोला है कि आप बहुत ही फिट हो, आपका फैट मेल्ट हो चुका है, आप भाग रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आपके पास पैसा आ गया, लाइक व्हेन वी से ऑल दीज थिंग्स एंड मच मोर, आपने हील हुआ है, आपका पास्ट हुआ ही नहीं है, ये सब हम जब वो बोलते हैं, हमसे बुलवाया जाता है, वो सब डायरेक्टली आपको सबकॉन्शियस में चला जाता है। दिस इज द की।
और आपका पेन भी नहीं होगा ये चीज में, यू वोंट फील द पेन ऑल्सो। आपको कुछ करना नहीं है, आपको आना है, आपको 5 AM में बैठना है और आंख बंद करना है और जस्ट जस्ट सर जस्ट डू दैट मच, रेस्ट ऑल इज टेकन केयर, रेस्ट ऑल इज टेकन। क्या जाने वाला है, ट्राई करके तो देखो, जस्ट ट्राई एंड सी। इतना मुफ्त में इतनी सारी चीजें एक एक टाइम में हो रहा है, किसका बेनिफिट है? समथिंग दैट यू गाइस कैन आंसर फॉर योरसेल्फ। साइंस पार्ट 2, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन। आप कॉन्स्टेंटली फाइट में हो, फ्लाइट में हो, फ्रीज में हो, है कि नहीं? फाइट में क्या, इरिटेबिलिटी, कंट्रोल। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये वर्ड के साथ ना, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई इमोशंस, आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई इमोशंस। आपने कभी घोड़े को भगा के देखा है? भगा के देखो, जब आप उसको कंट्रोल में खींचना चाहते हो ना, वो भागना चाहता है और आप खींचना चाहते हो, वो और तेज भागेगा, बिकॉज इट डजंट लाइक दैट। वही आप उसको लूज पकड़ो और उसको आजादी दो कि वो जो करना चाहता है उसको करने दो, बट यू आर देयर टू नेविगेट, टू मेक श्योर एंड इट विल काम डाउन। कंट्रोलिंग मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, सो प्लीज यू नीड टू, अगर आपको कामनेस फील करना है, आपको पीस फील करना है, तो आपको कंट्रोल को लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है? फ्लाइट, रेस्टलेसनेस, अवॉइडेंस, अवॉइडिंग, ओ माय गॉड, ये भी बहुत चीज हो। मुझको भागना है, मुझको ये खत्म करना है, आई डोंट वांट टू फील लाइक दिस एनीमोर। ये कब खत्म होगा? मैं इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, कब खत्म होगा? मैं तो 21 डेज मैंने प्रैक्टिस किया, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। व्हाई यू वांट टू गेट आउट ऑफ इट? एस्केपिज्म क्यों? क्यों? बिकॉज यू डोंट नो टू सिट विथ योरसेल्फ, यू डोंट नो हु यू आर, देयर इज अ गैप बिटवीन हु यू आर एंड हु यू आर शोइंग टू द वर्ल्ड, देयर इज अ गैप, इसीलिए आपको भागना है। फ्रीज, कोई कोई को कुछ समझ में ही नहीं जाता है, नमनेस, शटडाउन, इनडिसीजन, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं। माइंड जिम क्या करता है? क्रिएट्स क्रिएट्स सेफ्टी, फेल्ट हो गया ये, एडिट करना पड़ेगा। क्रिएट्स सेफ्टी, ट्रेन्स रिस्पॉन्स नॉट रिएक्शन, ब्रेक्स स्ट्रेस क्रेविंग लूप्स, है ना, वही है ना? हाँ, स्ट्रेस क्रेविंग गिल्ट लूप्स। को समझ में आता है कि आप कहाँ पे हो, आप फाइट कर रहे हो, आप फ्लाइट कर रहे हो, आप फ्रीक्स कर रहे हो, कौन सी चीजों में हैं आप, है ना? ठीक है। साइंस पार्ट 3, वाई विल पावर फेल्स। विल पावर इसलिए फेल होता है क्योंकि आपका विल पावर कॉन्शियस माइंड से आता है, आपके हैबिट्स सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं। फोर्सिंग चेंजेस ऑफन क्रिएट्स रेजिस्टेंस। आप फोर्स कुछ करने जाओगे, आपका रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे माइंड जिम में हम बाईपास करते हैं इस चीज को। यू यू सिट विद इट, यू एड्रेस इट एंड यू गेट आउट ऑफ इट। बाईपास फोर्स वर्क्स विथ रिपीटेशन प्लस सेफ्टी, क्रिएट्स ऑटोमेटिक हेल्दियर रिस्पॉन्सेस। आपके हेल्दियर रिस्पॉन्सेस होंगे। यहाँ हम वहां ट्रेन करें जहां आपके हैबिट्स हैं, जहां आपकी आइडेंटिटी है और जहां पे आपने आपको लगता है कि मैं इतना ही हूँ। वहां पे हम जाके एक नए सीड को उगाते हैं। वी सो अ न्यू सीड्स ऑफ यू विच इज ट्रू टू हु यू आर, और आप खुद सो करोगे, ठीक है? नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी, Priya will take over here. Thank you so much for listening to me so patiently. And yeah, Thank you so much, Soumya. It was so amazing. But I think that we just have 10 minutes, so let us take up the queries if they have any query about it, है ना? And we can carry on this thing later on in the next go, because it's हाँ, 6:52 now. So let us respect time also, right? sure, So sure. है ना? तो हम लोग उसको करते हैं. So now, as you know, that Soumya has told so much about the science aspect of the mind gym, that why you need mind gym, how it is different from the meditation. So guys, can I ask our tribees that will you ever use this word meditation again for the mind gym? Some of you use ना, आज का meditation ऐसा था, आज का meditation ऐसा था. So guys, it is not meditation. Now you know that what it is. Meditation is done to calm your mind. That is just the first 10-15 minutes we do, right? And mind gymming is conditioning, retraining your mind, creating new patterns in your mindset. We make you reach there, go there, dig there, feel that emotion, and then we again pull you back from that space. We make you aware. Awareness है इसमें. Awareness is very important. जैसे समंदर होता है ना, समंदर के अंदर विचार आपके आते जाते रहते हैं, कभी क्रस्ट एंड ट्रफ, ऐसे ऐसे करके आपके विचार आते जाते रहते हैं. So meditation will calm that. Okay, meditation is going to calm that. And what mind gym will do, mind gym will make you realize what it is, go into it and make your mind stand so that those things do not come again. Calmness and do not come again. Calmness and do not come again.
सो दिस इज हाउ यू आर कंडीशनिंग. कंडीशनिंग जो है हमारी शुरुआत से लेके अभी तक हम लोगों को जो भी विचार दिए गए हैं, जो भी हम लोगों को समझाया गया है, आवर सबकॉन्शियस माइंड इज कैप्चरिंग ऑल दैट थिंग. Everything is getting captured there. Now when you are meditating, you are saying, you are getting blinded. आप आंखें बंद करके अपने साथ जुड़ रहे हो, खाली उतना है. लेकिन क्यों आप मेडिटेशन करके आते हो? देर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट वी यूज इन मेडिटेशंस ना. आपको जैसे हम लोग रिलीजियस पर्पस के लिए जाते हैं या हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें कुछ मंत्र दिए जाते हैं कि आप ये मंत्र बोलो, ये बीज मंत्र है, आप इसको बोलो. तो आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान आपके अंदर ब्रेन के पैटर्न्स जो है उनको ठीक करने में नहीं है. आपका ध्यान कहाँ है? उन मंत्रों को पढ़ने में, उन मंत्रोच्चारण करने में. या फिर अगर एफर्मेशन वाला करते हो तो आपका ध्यान कहाँ है कि मैं इन एफर्मेशंस को बोलूं, मैं इन एफर्मेशंस को बोलूं. बट व्हाट वी डू इन माइंड जिम इज वी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर स्पेस इन योर माइंड, और इफ एनी काइंड ऑफ पेन you are experiencing and it is hidden within somewhere in your body, when I tell you, just let me ask you that just imagine that a person comes in front, just out of nowhere a person comes in front of you. ठीक है, और वो he is not of your liking, you actually in your past you hated that person. So before it goes into your mind, it will come as a feeling in your body. You will be feeling discomfort somewhere. आपके दिल के अंदर हो सकता है, आपके गले के अंदर, कहीं ना कहीं आपको शरीर के अंदर वो फील होगा. So meditation is actually acting in your mind. Mind gym is acting both in your mind and your body and your gut and your heart. So this is where mind gym is actually completely different from meditation. Meditation is just a small part of mind gym. जैसे कि हम लोग +5 लिखते हैं. +5 अगर लिखें, वो +5 को अगर हमने साइड चेंज करके दूसरी जगह लेके आएंगे, ट्रांजिट करके, इक्वेशन जो होती है ना, सिंपल इक्वेशन होती है, जैसे वो वाली बाइनरी इक्वेशन होती है, दो तरफ एक x और y वाले, जो याद है आप लोगों को, मैं मैथमेटिक्स में लेके जा रही हूँ. तो वी यूज टू चेंज द साइड्स. साइज चेंज करने से हमारा वो प्लस और माइनस का साइन चेंज हो जाता है, तो वो लग जाता है ना. अगर आप राइट से लेफ्ट लेके जाओगे, लेफ्ट से राइट लेके आओगे, तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं. तो इफ यू राइट +5 और सिंपल 5, इट इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो माइंड जिम के अंदर मेडिटेशन इज अ पार्ट, बट रेस्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट टेक योर सेल्फ ऑफ. यू हैव टू गो इनसाइड इट. हम लोग बोलते हैं, हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर, ट्राइबीज जो है हमारे प्यारे से दोस्त, उनको हम बोलते हैं, वो दे काइंड ऑफ एब्सटेन देमसेल्फ, रिफ्रेन देमसेल्व्स टू गो इन द नेगेटिव जोन. वी आस्क देम टू गो, जाओ वहां पर, फील करो. नहीं फील करने से आप बाहर आ ही नहीं पाओगे. अगर आपको मैंने गर्म पानी दिया, पानी का टेम्परेचर को देखने के बजाय अगर आपने उसको फील ही नहीं किया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये पानी गर्म है कि ठंडा? आपको जाना पड़ेगा, आपको उस पानी के अंदर अपनी उंगली डालनी पड़ेगी. उंगली डालकर ही आपको पता चलेगा कि इसका तापमान कितना है. क्या वो पीने लायक है तो मैं उसको पीऊं, नहीं पीने लायक है तो मैं नहीं पीऊंगी. Right? We make you come in upfront with the problem that is coming in your life as a challenge, because every day you are going to face this challenge in your office, in your relationship, in the finances. Those challenges will come. You're not going to Himalayas and sitting there in Himalayas to meditate. You are in your real life. When every day when you go to traffic, there's a challenge, right? When your boss comes in front of you and says something nasty to you, that is a challenge. How you will do that? How you will tackle that problem there? So challenges will definitely come to you. We tell you how to tackle those. And that is a permanent structure that is conditioned in your mind now. Completely conditioned. You will be able to experience that when you work your mind in a way that you condition it. इतने सालों से जो कंडीशनिंग हमारी हो चुकी है, आई एम 45, तो 45 ईयर्स तक जो कंडीशनिंग हुई है, उसको हम लोग एक झटके में, हम लोग ये नहीं कर सकते कि हम लोग ब्लाइंड हो गए, हम लोग काम हो गए, सब कुछ खत्म हो गया. नहीं, कहीं ना कहीं छुपा बैठा होता है आपके अंदर, कहीं आपके शरीर के अंदर. आपके शरीर में जो फैट की जो लेयर है ना, विसरल फैट जो आपके अंदर आजू बाजू में होता है, ट्रंकल एरिया में या कहीं पर, वो कहीं ना कहीं छुपा बैठा हुआ है. हम उसको निकालते हैं, जो कि माइंड में नहीं है, बॉडी में. मेनी टाइम्स व्हेन वी डू आवर बॉडी स्कैन्स एंड ऑल, वी टेल यू दैट कार्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज कार्ब्स आर द सेकंड हार्ट टू you. Many of times you might have heard us saying that. Like this, every cell in your body is important and it is hiding some of your emotions that you were not able to speak out. और आज भी अगर आप मेडिटेशन के जरिए कान अपने बंद कर लोगे, आंखें अपनी बंद कर लोगे, तो फिर आपने क्या किया? आपने उसको क्वारंटाइन कर दिया. क्वारंटीन किया है आपने उसको, लेकिन क्वारंटीन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको खत्म कर दिया है. आप उसको खत्म नहीं कर पाए. वो क्वारंटीन कर दिया, वो अलग जाके बैठा हुआ है, लेकिन उसमें इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन फिर से आपको अटैक कर सकता है. ये माइंड जिम में करते हैं कि हम उस इन्फेक्शन को आपके क्योर करते हैं.
We address that, we go into that, we make yourself feel that pain, and then we make you come out of that pain. This is what mind gym is. Soumya very beautifully has described us how it matters, like how the scientific aspect of it. Then we'll discuss about the spiritual aspect of it. And then most important factor is that you need to understand what is being done to you. That day one of my very cute friend was asking me ki, I let me just give please give me some substitute for mind gym. No, there is no substitute. This is absolutely compulsory for us to attend the mind gyms, because that is the fundamental that we are following here at Brain to Body Revolution. You have to work in your mind as well as your body. Your body also is very important. That is why here we are guiding you towards the for the food also, because gut again is very important for us. Respect your mind, but at the same time your body is also has to be respected actually. So we are actually covering the entire part, and that we are covering in the mind gym. We are making you do some certain exercises, even not by physically exercising, but mentally you are exercising. You are moving your hands, you are doing this, you are doing that. Only the first part is you're consciously you are meditating there. But later on, after 15 minutes, you are completely in the action mode. Your mind is in the action mode, your brain is in the action mode, your body is in the action mode. That you are doing in the mind gym. You are making your mental muscles strong so that it can withstand any kind of storm. जैसे सौम्या ने भी बताया कि हम जो आपका जो रियल मसल्स तब बनते हैं जब आप 6 घंटे अपने जिम में लगा लेते हो। आर्नोल्ड यही बोलता था ना, आर्नोल्ड बोलता था कि जब बाकी लोग छोड़ देते हैं ना जिम करना, 6 घंटे बाद तो मैं काउंट करना शुरू करता हूँ कि मेरे कितने रेप्स लगे। तो उसके बाद ही आर्नोल्ड जाके मिस्टर यूनिवर्स बना था, वो भी 13 टाइम्स। We make you visualize things, we make you act, we make you smell your success, we make you feel your success. Everything is done here in the mind gym. So for that, mind gym is an integral part of any of the program that we run in Brain to Body Revolution. So now we hope that you know about the science part completely. We will discuss about the spiritual part, and we have a very wonderful surprise for you guys also. We will be coming with another beautiful program again, and that will be so amazing that you will find love everywhere in every relationships, and you will be full of love and laughter and life. Love brings life into you. It invokes life into a dead person also. So we will be invoking love into your system. We'll be beautifying the relationship that you have with yourself and with others. So for that, we have a beautiful program. Next week, we'll be revealing that with the discussion of the spiritual aspect of the mind gym. So here we go. We welcome each and every one of you, all your friends. You are tribees, so definitely you are there in our programs. But the people who are not there in our program and you love them, you can gift them one free ticket to mind gym. Welcome them and let them also savor the flavor of mind gym. So this is how much that we are going to speak about today. If you have got any queries, any clarification, or any doubt for the programs that we have, please come up with your queries. And I would also request, if any of you want to share your experience with the Mind Gym, please come forward, and all ears to you. Thank you so much. Pin drop silence. Lee, can I ask one question? Please, Rachna. Rachna, yeah. Yeah. So at times it happened, I don't get up exact 5 May, so I joined 5, 10, 5, 12, in between. So is that okay? Because till now I was also under impression that understand the meditation wala part agar chhoot jaye and then go directly to mind gym. So is that okay, or it doesn't make sense? So Soumya would love to answer this, because Soumya and I were discussing about this. Yes, Soumya, please go ahead. This is her favorite question now at this moment. So. Guys, take it easy. बस आपको जब कहाँ पे भगवान whatever universe has planned for you ना has planned it right for you. ये जो ये हम करते ना कि वो करना था, ये करना था, ये हमारा है. This is called overthinking. आप कभी ओवर थिंक नहीं कर सकते हो. पहले तो ये निकाल दो दिमाग से कि ओवर थिंकिंग क्या होती है, ये समझाओ कोई मेरे को. आई वॉन्ट टू रियली अंडरस्टैंड दिस वर्ड ओवर थिंकिंग. दिस जस्ट थिंकिंग है ना. what they're trying to say when they say overthinking is you are fuzzing over something that needs to be not fuzzed on. है ना. हो गया कभी. Work on your intention. Where that needs to be done is it your intention. आप देखो कि आप 5 बजे उठ के बैठो, वहां पे गड़बड़ है. इट्स नॉट दैट यू आर वेकिंग अप एट 5:12, वो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पे? आपके इंटेंशन पे. आप देख ही नहीं रहे हो. आप जब सोने जा रहे हो ना, देखो ना, 5 बजे उठ के बैठे हो, कर रहे हो. ठीक है. फर्स्ट पार्ट ये है कि प्लीज वर्क ऑन योर इंटेंशन एंड टेक इट इजी. जब आपको जहां पे भगवान
यूनिवर्स हैज टू मेक यू रीच ना, ही मेक यू रीच। वो ट्रस्ट लाओ आपके लाइफ में, सभी लोग ये ट्रस्ट लाओ, वट एवर इज गिवन टू मी इज गिवन टू मी एट द राइट टाइम। ये बोलो, अभी जो मेरे लिए जरूरत है ना वही मेरे को मिल रहा है, ये यकीन कर लो आप लोग, है ना। तभी जाके आप क्या देखोगे, यू स्टार्ट सीइंग वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट, यू स्टार्ट सीइंग ओ माय गॉड, ओके, कितना कितना मस्त है ना, मेरे को इसी टाइम पे इसी मोमेंट में मेरे को यहाँ पे लाके रखा, वाओ, नॉट 1 minute here or not 1 second here, okay, that's first thing. Second thing, again fuzzing over meditation, आप जा रहे हो ना अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में, आपको कॉन्शियस नहीं होना तो वाई दिस फजिंग, है ना, जा रहे हो तो जा रहे हो रहा है ना, काम कर रहे हो, प्रॉम्प्ट्स लिख रहे हो, कभी नहीं होता है तो आप थीटा स्टेट में जा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी तो बोला कुछ भी हो रहा है लाइफ में, कुछ भी हो रहा है लाइफ में, पहले उसको एक्सेप्ट करो, वही तो हमने अभी बात किया, एक्सेप्ट वे यू आर, तभी जाके आप कुछ कर सकोगे ना। Rachna, you are asking, okay, is it okay if I come at 5:10 or 5:12? I'm missing it. Why are you not thinking, oh, let me start setting an intention of getting up at 5 a.m.? Set that as an intention. Set that intention. No, I'm waking up at 4:45 so that I do my washroom, everything, and come, and when I'm sitting for the mind gym, I'm sitting with the mindset that I'm going to learn something new about myself. ऐसे होते हैं लोग जो कुछ like people who want to really do something big in their life. They put 100% their effort in their practice sessions. उनका प्रैक्टिस में जाता है एफर्ट्स, वो गेम के दिन एफर्ट नहीं डालते हैं, गेम के दिन। सो योर प्रैक्टिस इज फ्रॉम 4:45 to 5, उस दौरान आप क्या प्रिपरेशन करोगे ना, वही आपको 5 to 6 में मिलेगा। वर्क ऑन दैट। अभी आप 5:12 आ रहे हैं ना, नाउ टेक इट दिस एज अ चैलेंज कि मैं 5 पे ज्वाइन होंगी, तो इसके लिए थोड़ा मैं 5-10 मिनट जल्दी उठूंगी, तो आई प्रेप एंड आई एम रेडी, राइट। Rachana, I hope I've answered your question. And it's completely, utterly okay. Universe doesn't mind. And another thing is, Rachna, it is not about missing on something. It is about doing something that is actually one thing, and you will be seeing that thing in other areas also. When we have told you, when we have messaged you that you have to be there at 5, means that you should put all your efforts to be awake and be there at 5. And kabhi kabhar ka chalta hai, but every day अगर it is happening, Rachna, then you really have to work on that also. Because you have to prioritize mind gym. It is not about missing the meditation part. Absolutely not about missing the meditation part. It is about that you will be actually repeating that in other things also. Office में, बच्चों की मीटिंग में, शॉपिंग में, अपने डेट पे कहीं जा रहे हो वहां पर, this thing has to appear, because one thing that you are doing is actually represents all the areas of your life. So make it a point that if it is happening like in a loop every day, or जैसे 7 दिन में से 5 दिन अगर ये हो रहा है, तो रचना, I have to pick myself and I have to be there at 5. ठीक है, and this is again a practice, धीरे धीरे करके you will be able to, and we are very proud of you that you still are you are doing brilliant, Rachna. There is no point in questioning yourself, questioning your intention. You have to prioritize to be here, that's all. If this thought has come in your mind na, then it definitely means it has got something to do. So what you have to do is set your intention that I'll be waking up, जैसे कि सौम्या ने बताया, मैं 5 बजे होंगी और मैं 5 बजे कर लूंगी उसको। 1-2 दिन मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, बट यू मेक इट अ पॉइंट दैट यू ट्राई एंड बी देयर एट 5 लाइक अदर्स डू। अरे वही हो जाता है ना, इफ यू आर कंसिस्टेंटली शोइंग अप, 1-2 बार जो नेचर के अनुसार या व्हाटएवर उसके हिसाब से थोड़ा इधर उधर भी हो गया ना, यू ऑटोमेटिकली विल बी ओके विद इट। अगर यू आर नॉट ओके विद इट मींस यू आर एक्चुअली सीइंग इट, यू आर नॉट एट पीस विद इट। हाँ वही तो। विधि जी, यू नो द आंसर। आज मैं वही बोल रही थी रचना बस को कि बिल्कुल रचना, यही यू आर बोलना चाहती थी मैं भी कि बिल्कुल मतलब ये एक हैबिट सब जगह होती है। मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि वो मुझे आदत है, मतलब इतनी आदत है बिफोर टाइम जाने की कि कई बार मैं कई जगह 5 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ और कई बार मुझे लोगों को हैरानी होती है कि कैसे आ गई। मतलब इतना ज्यादा आदत है, तो वो सब जगह ही रिफ्लेक्ट होता है। तो वो हैबिट मेरी भी है, जैसे कि यहाँ वो किसी भी क्लास में हो तो 5 मिनट पहले, मतलब 5 मिनट पहले, वो यहाँ पे नहीं, वो सब जगह है। आज भी मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी 6:15 की, तो मैं तभी अभी 6:30 वापस आई हूँ, तो हम 6:05 पे पहुंच गए थे। हम लोग बाहर मार्केट में घूमते रहे, डॉक्टर साहब ही नहीं आते। उनको लगा मैं 6:15 बोला था, मेरे को यही लगा कि हम लोग बिफोर टाइम ही रहने वाले हैं हमेशा। तो ऐसा भी होता है, और सब जगह ही होता है। फिर वो ऐसा नहीं कि यही हो रहा है, वो हर जगह ही होगा, हर जगह रिफ्लेक्ट करता है। you will be there on time for a friend who needs your help, even if that person has not called you. If you have this practice, you will be there at the nick of the time, you know. It's true, it's very true.
Thank you, Pitiji, for validating. Thank you. So sweet. And thank you, Rachna, for the question. Beautiful, honest. It's hard, guys, to ask questions, to be vulnerable in front of a crowd, And thank you, Rachna, for doing that. Appreciate it. Awesome. कोई और कुछ और तो अब से कौन कौन माइंड जिम बोलेगा? Yes, I have a question for Mind Gym. Yes. It happens quite often that I sleep, either I doze off during the Mind Gym, or I go in, planning my day ahead, and then I don't comprehend anything because I'm lost in my thoughts. And then when I come back, when I pull myself back to the thoughts, back to the Mind Gym, so it's like I have missed certain part of it, and then it becomes like अभी ये क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं. So I feel like quitting कि अब तो दोबारा करना ही पड़ेगा, तो let me just stop कर देती हूँ. So is that okay? Stopping is not obviously good idea, but then if it is not going in and then it goes off in between, so will This it go is inside? This is fuzzing right now. Okay, Didi will. I have answered it technically, but I let Priya throw it in a different angle so you get it. Priya. तो ये जब कोई बंदा जो है ना किसी सीबीटी करवाने जाता है, जस्ट सपोज देयर इज समथिंग न्यूरोलॉजिकल थिंग इज हैपनिंग इन योर माइंड एंड यू आर अवेयर दैट दिस इज समथिंग इज हैपनिंग टू मी, right? So the people will give you some exercises. You are going consciously doing that exercise. But when you deliberately do not want to do any exercise, any kind of mental exercise or physical exercise for that matter, then what your coach does, he actually trains you, he makes you sleep, and then he encodes your mind. Okay? He makes in lie detector test also. Lie detector test जो होता है ना उसमें भी ऐसा किया जाता है, जो उनको कुर्सी पे बिठाया जाता है उन लोगों को, उनका थीटा स्टेट को एक्टिव किया जाता है, एंड देन दे आर मेड कॉन्शियसली स्पीक अबाउट देमसेल्फ सो दैट दे डू नॉट लाई, है ना? उसको थीटा करने के बाद उनको वापस से अल्फा में लाया जाता है. थीटा का मतलब जब आपको नींद आ जाती है, व्हेन यू आर सेइंग दैट यू आर डोजिंग ऑफ. तो मैं आपको इस बात को बताना चाह रही हूँ कि एवरी टाइम, even if you are dozing off, even if you are lost in your thoughts elsewhere, still it is going in your mind, and you do not have to repent that I have lost, I should quit. No. I feel very agitated that मैंने 1 घंटा वेस्ट कर दिया और कुछ I have not taken कुछ भी away वेस्ट नहीं anything. होता. everything is useful. Everything is useful. कुछ भी वेस्ट नहीं है. Not a single part is missing from you. Everything is going into your mind. It's like meeting परमात्मा. एंड जैसे कि आप देखो, मैं बहुत बारी एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन की जो वार्तालाप हुई थी, जो कि कुरुक्षेत्र के समय पे हुई थी, और उन्होंने उनको दर्शन दिए थे विराट रूप. सबको पता था कि श्री कृष्ण एंड अर्जुन आर रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड एंड वेरी गुड फ्रेंड्स एंड गुरु शिष्य ऑल्सो, राइट? बट द विराट रूप जो उनका था, वो बाद में जब गीता लिखी गई तब हम लोगों को पता चला. लेकिन अर्जुन को याद ही नहीं था कि उन्होंने श्री कृष्ण का विराट रूप देखा हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने थीटा स्टेट में देखा था. बिकॉज गॉड डजेंट वॉन्ट कि ये जो चीज है एक्सपीरियंशियल है. अर्जुन को तो दिख गया, लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिखा है, तो वो लेट दोस पीपल ऑल्सो मेडिटेट और गेट इन टू द स्टेट दैट दे आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड वॉट दिस एक्सपीरियंस इज अबाउट. So this is experiential. That is why universe makes you sleep, so that you do not have to put your conscious mind into it. You just grasp as it is. Everything is getting encoded. You might be thinking, मुझे कितनी बार ऐसा होता है, सौम्या ले रही होती है कोई माइंड जिम का सेशन, या वैसे भी जैसे नॉर्मली हम लोग, तो आई एम कंप्लीटली लॉस्ट दैट टाइम. दैट वाज माय बेस्ट दैट टाइम. So whatever you are doing, that was your best that time. बहुत बार सौम्या भी बोलती है, दीदी तुझे तो आई कंप्लीटली स्लेप्ट, और आई डू नॉट नो व्हाट हैज हैपेंड. सो इट हैपेंस विद एवरीवन. इट इज नॉट जस्ट यू. Maybe your frequency is more because you have to prioritize. We have prioritized it. So it like a few times it happens to us, but then you have to accept whatever is happening. Everything is happening with God's will. If God wants you to be awake, it will make you awake. If God thinks that no, Aanchal is going to tussle with this thought. No. I want her to experience, but I do not want the interference of her conscious mind. Then he'll make you sleep. Okay? So everything is happening according to what universe wants you to do. Nothing is फालतू का. ठीक है? Okay. लाइव एग्जांपल देती हूँ मैं अभी आपको, जो दीदी ने अभी एक्सप्लेन किया एग्जांपल के साथ. अभी आपने क्या बोला, कभी कभी मैं सो जाती हूँ, मुझको एजिटेट होता है. ठीक है, यू सेड दिस राइट. देयर आर सो मेनी पीपल हियर अभी राइट नाउ कि कितने सालों का ये सवाल था, आपने आंसर करवाया just by asking that question, because you experienced all of that. It made you talk right now. Because you talked right now, अभी जो है वो तो सुनेंगे, ये तो YouTube पे भी जा रहा है. तो some day or the other someone will bump into this and that person might have the same question. Can you see? Nothing goes to waste. आप लोग जो waste बोल रहे हैं, काहे का waste? There's no waste. Everything is amounted to something.
आप बोल रहे थे ना ये वेस्ट जाता है मेरा, नो, इट मेड यू क्वेश्चन टुडे हियर, एंड इट माइट बी अ सेविंग ग्रेस फॉर समवन सम डे। तो क्या आपका ये होना गलत था, वेस्ट था? God's will. It's God's will that you had to go all that so that you could ask this question. And I'm sure आज बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया है फाइनली कि इट्स ओके। और फिर कभी किसी ना दिन someone bumps into this some random person and he will be like, oh यार मेरा तो यही था सवाल। तो हो गया ना आपका, वर्थ इट हो गया ना, यू नॉट बीइंग एबल टू like whatever you're saying, वो एक्सपीरियंस वर्थ इट रह गया ना फिर। सो वाई आर वी ऑल कैरिंग दिस बोझ की वेस्ट हो रहा है, मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ। वो करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप ये फल ही तो मांग रहे हो कि मैं माइंड जिम करूंगी मेरे को ये फल, फल नहीं इच्छा करना है, कर्म करना है। इंटेंशन डालो, कर्म करो, जो मिल रहा है उसको लेके जाओ। कर्म योग। क्लियर? Take Yes, this, super correct, sir. that Thank you. do your best and leave the rest. यही सोच लो, do your best and leave the rest, do your best and leave the rest, and your best will differ every day. when you are not Okay? doing your best, you know that this is the best I can do and you're not doing it, तब जाके ये वाली चीजें आएंगे आपके अंदर। that's the reason why you even have that thing। ठीक है? And so many of you have overcome this, है ना? सुमन है यहाँ पर, सुमन को बहुत सवाल रहते थे। मनीषा, मनीषा है, अभी यहाँ पर नहीं है, she'll नहीं, be मनीषा listening is to the not there। recording. So she used to say कि नहीं कर पाती, लेकिन बाद में when she prioritized it, still there are certain times that she thinks that no, like मैं सो गई थी, but it is absolutely normal है ये, कुछ भी इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? even आया her आया आई वांट एडमिटेड ना, हो जाता है ऐसा, कोई इशू even her ना आंचल स्टार्टिंग में she was not able to comprehend, बीच में then she was able to be there for longer duration of time। अभी Yes, फिर it was in the beginning I was not able to get it, and then in between the time came when I was doing it every day very nicely. I हाँ, used to go into some different world. So वो exactly, वाली feeling अभी नहीं आ रही, अभी फिर से it has started, the same thing. because you're chasing those peak experiences, you're chasing it, Those you're peak trying। experiences were divine. when you start asking for such things to repeat, वो desperation है। आप बोल रहे हो मेरे पास अभी नहीं है वो, you're chasing peak experiences। No desperation, no expectation, just do and leave, do and leave, do and leave. do and live। ठीक है? Okay. Thank you so do much. do yes, Thara has raised her hand, oh my god। oh Manisha जी। I want actually I want to add something. हाँ हाँ हाँ, first you need to So come on screen, we can't highlight your I can't. I'm in hospital. I'm working diploma. I will add something. आंचल आपने बोला Tara, we can't hear you। Network is going down for you. for me? No, for नहीं, Tara. फॉर एवरीवन। और एक मैं भी माइंड जिम के लिए बोलना चाहूंगी, बस यही है कि जैसे आप कह रहे हो कि शी इज चेजिंग द एक्सपीरियंस, आपको नहीं लगता? मैंने बहुत टाइम, मतलब मैंने तो बहुत ज्यादा टाइम किया है, ऑलमोस्ट 5 months प्लस। कोई भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होता, कोई भी एक्सपीरियंस, नॉट अ सिंगल डे। किसी दिन कुछ, किसी दिन फिजिकल, किसी दिन मेंटल, किसी दिन इमोशनल, किसी दिन स्पिरिचुअल, किसी दिन कुछ। तो इसलिए डोंट नीड टू चेज एनीथिंग, बस यहाँ पे करते जाओ, दैट्स इट। बस मुझे यही कहना है। Thank you Viti जी, you're so हाँ, wow, no, अभी तो Even और भी स्वीट लग रहे आवाज कितनी प्यारी हो। लग गई है। इवन सेम सेम माइंड जिम जो हमने सुबह किया है अलग फीलिंग है, और दोबारा किया तिबारा किया तो अलग फीलिंग है, सेम फीलिंग भी नहीं आती। Yes, this happens. I agree. हाँ, और हर बारी में कुछ नया लगता, अरे ये तो सुबह मिस कर दिया था, हाँ, ये कैसे सुबह मिस हो कई गया, फिर बार पता लॉस्ट चलता हो लगता जाती है लाइन, जैसे हम लोग भी। यस और जबकि मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कभी झपकी नहीं आई, बट फिर भी लाइनें मिस ही होती हैं, फिर भी हाँ मिस होती यस हैं। because you can only process so much ना, and it's okay and everything is okay यार, like सब कुछ ही okay टाइम्स है। कोई आपका सेंटेंस ही इतना डीप होता है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो, तब तक आपकी वो लाइन हमारी मिस हो गई ना। हम तो उस थॉट में गए थे, अभी हम उससे बाहर ही नहीं निकले, आपकी नेक्स्ट लाइन आ चुकी है। तो कोई बस अगर नहीं है कि बस पकड़नी है, बस मिस हो गई, ये तो करते नहीं, जाओ, इसीलिए और मैंने चलते जाओ। सोचा, मैंने भी नहीं सोचा क्या हो कभी। रहा है, हाँ आजकल क्या हो रहा है, लग रहा है कि अभी तो स्टार्ट हुआ था, अभी खत्म हो गया, अभी तो स्टेट में पहुंच रहे थे। समटाइम्स मुझे यही लगता है, जिस दिन हाँ, बहुत तो मुझे रिलैक्सिंग लगता होता है है कहीं ना, मैं उस दिन सो हमें तो लगता नहीं है, गई थी। मतलब यस मेरा तो 5:50 का अलार्म था, बिकॉज कई बार मैम के साथ होता है कि उधर वाला भी सेशन ऑन या ऑफ करना है, तो मेरा 5, तो कई बार वो 5 का अलार्म बजता था, तो मुझे लगता था ले खत्म भी हो गया, अभी तो शुरू हुआ था, मतलब मुझे तब यस वो अलार्म से पता चलता था कि हो गया, तो भी खत्म भी हो गया। अगर आप लोग कुछ प्रोसेस कर रहे हो, आप कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, मीनिंग यू आर यूजिंग योर कॉन्शियस माइंड।
सबकॉन्शियस हर नहीं बारी पता। नहीं होता ना सौम्या, मतलब क्या होता है कि कई बारी कोई ऐसा, जैसे अब आप बोल रहे हो कि वो लाइट को आप वहां लेके जाओ जहां आपको पेन है, तो कई बारी फिर कॉन्शियस माइंड भी चल पड़ता है ना साथ वो में। स्टार्टिंग में ही, वही जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही होता है ना। बाद में आप आगे पीछे जा रहे हो, आपको याद नहीं है कुछ भी लाइंस। जब प्रॉम्प्ट्स देते हैं वो भी कभी कभी आपको समझ में नहीं, अरे ये नहीं हुआ था आते, क्या, ये मैंने किया है सच क्या। में, यस रियली, दैट कि इज कभी नॉट। कभी तो इमीडिएट आंसर आता है और कभी कभी तो लगता है बाद में देखेंगे, फिर से सुनेंगे, फिर से करेंगे, पता चलेगा। So that is what रियली। now that has changed you guys. If you go back and see your journey of whatever journey you have been with us, it's not what you have processed that made a highest, that has made an impact, but what you have not processed. आप, मैं ऐसे थी, मैं ऐसे कर रही हूँ अभी, like when people tell you something and you're like, oh my god, that has shifted. Why? Because it has changed in your that subconscious mind, in your gut, in your back of your mind. नहीं, That's what has. किसी थॉट या किसी मतलब इंटेंशन से बैठो, बट किसी बोलते ना प्री थॉट के साथ तो बिल्कुल भी मत बैठो कि And ये मेरे को Bitti, would you like to throw some light on the thing that pre mind gym what were you and post mind gym what you are? You had this thing ना कि यार मुझसे ये चीज तो नहीं होती है, and now what you feel? अब तो मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल फील करती हूँ अपने आप को, लगता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। और पहले मैं जैसे कि You were not able to sit with yourself earlier, ना? या बिल्कुल, मतलब वही होता था ना कि पूरा टाइम या तो यूट्यूब चलता रहे, कुछ ना कुछ चलता रहे, बस घर में कोई आवाज, क्योंकि अकेली तो हूँ ही, तो होता ना कुछ लगा दो, चल कुछ चल रहा है, कुछ सुन लिया, कुछ नहीं सुना। बट अब तो पता चल गया कि अब तो यूट्यूब ऑन करने से पहले भी इंटेंशन सेट करती हूँ कि भगवान कोई बढ़िया सी वीडियो जो मुझे सुननी हो ना वही लगवाना। बहुत ज्यादा नहीं सुनने का मन। वो भी इंटेंशन सेट करके शुरू करती हूँ कि मुझे नहीं, मतलब मुझे वो कोई बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं चाहिए, क्योंकि अब लग रहा था कि ओवर नॉलेज होना भी ना मतलब आपके लिए गलत है। तो हम लोग बहुत कुछ सुन रहे थे, कहीं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, फेसबुक पे, और बहुत सारे स्पीकर आ गए, पॉडकास्ट इतने सारे आ गए, तो बहुत सारे, बहुत, और आज नहीं, मेरे को तो लगता है मैं पिछले 10 सालों से मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत जमाने से सुनती हूँ, और बहुत ऊंचा स्पीकर पे लगा के सुनती थी ब्लूटूथ। तो मतलब मुझे लगा नहीं, बस भगवान वही सुनवाना जो जरूरत है, बस बहुत हो गया। मुझे नहीं चाहिए, मुझे बोलते ना वो बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस जो चाहिए बस खास 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 चाहिए बस। Yeah. तो वो मुझे लगता है कि, और मतलब बहुत स्ट्रांग फील करती हूँ, जो लगता है कि जो मेरे लिए है वो मेरे पास आ जाएगा, जो मुझे चाहिए बस मुझे वही चाहिए, सब कुछ। ये बोलते ना पहले बहुत होता था, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मतलब नॉलेज की बहुत ज्यादा भूख थी। भूख अभी भी है, लेकिन अब पता चल गया कि अब क्या, मतलब बोलते ना कि थाली में तो बहुत सारा, वो होता है थाली ले लेते हैं हम लोग, खाते हम कुछ भी नहीं है उसमें से। तो पता है कि मुझे सिर्फ 2 ही चीज को ऑर्डर करना है और ये सिलेक्ट करके खाना है। तो ये अब जो मेरा माइंड जिम का, कि अब मुझे, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई थॉट्स, माई डीड्स, माई वर्ड्स, माई एक्शंस, हर चीज में बहुत सिलेक्टिव हो गई हूँ, बस ये मैं कहना चाहती हूँ। I थैंक यू have सो also मच। experienced exactly the same thing. बिल्कुल यही चीज मैंने भी experience करी है. And one more thing I would want to share, like when during the beginning of the mind gym, when you say na, set an intention for this mind gym. So I go blank. What intention should I set? Now it's like कि when I am in a situation, I decide a day prior for tomorrow's mind gym. I will set this intention, and then I will go further about it. Good. Look at you. Because Great. it's not about earlier my intentions were way different from now what they are. It's like consistency, doing things regularly. That's and about your weight, about your food habits, eating habits. So that kind of intention when I said, so I think that's the biggest to-do list का first point हो जाता है वो. Simple focus. Thank you guys, and we both we observers can vouch both of your transformation. बिटी जी का वो कहना कि वो ये छोड़ के मैं को सिर्फ वही चाहिए जो मैं खा सकती हूँ, इट्स अ ह्यूज थिंग, मुझे ह्यूज बहुत था, थिंग। आई एम वेरी क्रेविंग फॉर, मतलब मुझे, मतलब सच में मुझे वो हर चीज का पता होना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों Exactly. था कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इसको भी सुनना है, उसको भी सुनना है। और कई बार जैसे मतलब, और वो चीज भी आपने मेरी मतलब पकड़ी कि मुझे था कि मुझे माइंड जिम भी करना है, मुझे मॉर्निंग वाले मैडम मैडम का सेशन भी करना है, तो मुझे वो दोनों चीजें चाहिए। मतलब मुझे लगता था यार वो जो आपने फोमो मेरा था ना, वो मेरा आपने जो ठीक किया वो बहुत जरूरी था मेरे लिए, तो सच में मैं तो बहुत, आई एम रियली क्रेजी अबाउट इट कि मुझे कुछ छूटना नहीं चाहिए। Yeah, that's okay. That's fine. Tara is here. Shall we take her? So, thank you, BTG. Thank you, थैंक Anshul, यू सो for मच। your beautiful testimonials and watching. We appreciate, we love you guys, and we can really 100% guarantee that that is what we are seeing in you for sure. थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। Yes, the genius behind the Mind Gym creatives, the one who puts words into images, who makes it all come alive right before our eyes. जो हम आंख बंद करके देखते हैं, वो हमको आंख खोल के देखने में हेल्प करती है, वो है मिस तारा. प्लीज शेयर. क्या है, आंचल ने बोला
कंसिस्टेंसी नहीं है, वो जो था वेस्ट हो गया। मैं बोलती हूँ, मे बी आर्ट में 5 साल थी, आई डिड 2 years ऑफ आर्ट ट्रेनिंग, आफ्टर दैट कोविड आया तो मैं छोड़ दिया, बट वो वेस्ट नहीं हुआ। अभी आप देख रहे हो जो जो चीजें मैं बनाती हूँ, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस आई डिड, that much of practice, deeply practice I did, because of that I am doing all these things. So कोई प्रैक्टिस वेस्ट नहीं होता है। मैं भी कभी कभी सो जाती हूँ, फिर से मैं सुनती हूँ, बाद में बनाती हूँ, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, तो कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। So that's what I want to add. Beautiful, beautiful. It's true. Knowledge of never goes waste and any experience never goes waste. बिल्कुल कभी हमें लगता है ना, जैसे बिट्टी भी बोल रही थी कि अभी मैंने उसका सुना ये. Even that was important for you to यस make this realization या today. बहुत कुछ आज ना, कभी जब मैं मतलब मैं भी आपको पता है एक छोटा सा सेशन शाम को लेती हूँ, और मुझे तब मतलब मैं कई बार बोलती हूँ आज मैं नहीं ले रही, प्लीज तुम लोगों को, तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं आपको सुनना है, बिकॉज आप भी सेशन लेते हो प्रिया, हम भी आपको भी देखते हैं कि वो हमको सिर्फ बुक में हिंदी एक्सप्लेन करना नहीं है, हमको बहुत सारी चीजें कहीं और से लाके उसको एक रेजोनेट करके चीज को प्रोजेक्ट करना है। तो वो चीजें आज मेरे काम आती हैं जो मैंने पहले सुनी थी। हाँ, आज भी मैंने कभी भी बहुत कुछ अच्छा भी वेस्ट एग्जाम्पल, नहीं हाँ होता. आज मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दिया। तो मैंने बोला कि मतलब हमारा 5 मिनट फालतू 6:55, मैंने कहा 5 मिनट आपके मैंने ज्यादा लगा दिए, तो मतलब मैंने वजह से थोड़ा सा अपोलोजाइज तो नहीं कहूंगी, मतलब मैं कह रही थी कि वो तो नहीं मैम आपने बहुत सही एग्जाम्पल दिया, और वो पता नहीं कहाँ से मुझे याद आया था, वो आपको जैसे सुनती हूँ तो तब मुझे लगता था कि प्रिया यार कहाँ कहाँ से लाती है। तो अब वही मेरे में सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं से जब मैं बोल रही होती हूँ तो वो चीजें पकड़ में आती हैं, और वो सच में बात यही है कि वो उस समय शायद जरूरी था, उस समय जो सुना था वो आज कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर पा रही हूँ। Absolutely. तो अभी हमारा माइंड जिम ऐसा है, अभी जो आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हो, आगे भी ये यूज हो जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा। यस आई नो। Absolutely. हम बिल्कुल. बोलती है दुआदार बोलती है पर वो बोलते नहीं हम चौके पे छक्का लगाना, ये वो हाँ है। ये वो है हमारे लिए बिल्कुल। हाँ हाँ, हाँ मोनिशा जी हम भी बिल्कुल निकलते हैं। हम भी निकलते हैं. Thank you so much, beautiful people. We'll continue the spirituality side of it in the next tribe meetup. Thank you so much for your love, for your warmth, and for your embrace. And आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए माइंड जिम बहुत बड़ी चीज है, बट ट्रस्ट मी एंड प्रिया हियर दैट ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा बून है। एट 5 AM वी आर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम बैठ के आंख बंद करते हैं हमको नहीं पता हम कौन हो जाते हैं, एंड वॉट एवर गाइडेंस यू गेट इज द गाइडेंस फॉर अस ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर एनर्जीज, थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एंड दोज हु हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस, please come and experience. First one is on us, and we will be happy to take you on this journey. We love you guys. Thank you for being with us today. Thank you so थैंक यू much. सो Have a मच, थैंक यू brilliant सो week मच। ahead. Thank you so much for your precious time. Thank you so much. Love you all. Thank you so much. Thank you so much. Thank Good night. you. थैंक यू। Thank you so much.